آج کی کہانی دو بہنوں پر مشتمل ہے، جس میں سے ایک کا نام عائشہ اور دوسری کا نام زینب تھا۔ دونوں ایک ہی گھر میں پلی بڑی تھی، مگر دونوں کی عادتیں بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ عائشہ بہت محنتی، صابر اور دوسروں کا خیال رکھنے والی تھی۔ وہ امی کے ساتھ کچن میں کام میں ہاتھ بٹاتی، بچوں کو پڑھاتی اور ہر کام دل لگا کے کرتی تھی۔ ایک صبح کا آغاز ایسا ہوا۔ ہمارا تمہارے لیے پسند کا آملیٹ بنایا میں نے، بس 2 منٹ صبر کرو، ناشتہ بننے والا ہے، میں بناتی ہوں تمہارے لیے۔ بہت شکریہ عائشہ، تم شروع سے ہمیشہ میرا خیال رکھتی آ رہی ہو۔ تمہاری وجہ سے میرا کہیں جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ آج میرا پیپر ہے، دعا کرو اچھے مارکس سے میں پاس ہو جاؤں، پھر میں تمہارے لیے بہت اچھا تحفہ لے کے دوں گی۔ تحفے کی کیا بات ہے، مجھے تحفہ نہیں چاہیے، میں اپنے دل سے سب کا خیال رکھتی ہوں، بس میری لیے دعا کرو اور انشاءاللہ تم اچھے مارکس سے پاس ہوگی، پریشان نہ ہو۔ یہ ہے زینب، جو کہ خوبصورت اور ذہین تو تھی، لیکن بہت خود پسند اور صرف اپنے بارے میں سوچ رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ صرف اپنی کامیابی سب کچھ ہے اور دوسروں کی مدد کو وقت کا ضائع سمجھتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں شدید بارش ہوئی اور سیلاب کا صورتحال پیدا ہو گیا۔ کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ عائشہ تمام ہمسایوں کی مدد کے لیے نکل پڑی۔ اس نے سوچا، کیوں نہ اس سخت وقت میں سب کی مدد کروں۔ میں اس تکلیف میں اپنے بہن بھائیوں اور اپنے ہمسایوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ عائشہ نے گھر گھر جا کے سب کی مدد کی، تمام لوگوں کی دعائیں دی۔ بہت شکریہ بیٹے، تم نے اس تکلیف میں ہماری مدد کی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آپ میری والدہ کی طرح ہیں، میں سب کی مدد کروں گی، اللہ مجھے واسطے، میں چاہوں تو سارے شہر کی مدد کروں۔ بہت شکریہ عائشہ، تم نے گھر گھر جا کے سب کی مدد کی، سب کو راشن دیا، بچوں کو پڑھایا، سب کو گرم کپڑے دیے، کھانا دیا۔ اگر تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ بہت شکریہ، اتنے کٹھن وقت میں کوئی اپنا بھی ساتھ نہ دے۔ تم پر آئی ہو کہ تم نے اپنوں سے زیادہ ہماری مدد کی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہاری کیسی مدد کروں۔ بہت شکریہ عائشہ، ایک دن میں تمہارے یہ احسان ضرور نبھاؤں گی، بہت زیادہ، تمہیں اللہ اس کی جزا دے۔ تم نے کھانے کو ہمیں سب کچھ دیا، بہت شکریہ عائشہ، میرے دل سے دعا ہے کہ تم کامیاب رہو۔ کوئی بات نہیں آنٹی، میرا فرض تھا۔ جبکہ زینب یہ سوچتی تھی، یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے لوگوں کی مدد کرنا سب کچھ، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ میری بہن بہت پاگل ہے، عجیب حرکتیں کر رہی ہے، مجھے اس کے اوپر غصہ آ رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے اتنے لوگوں کی مدد کرنا، اپنے کام سے کام رکھو بھی، خوش رہو اپنے گھر میں، سب کچھ مل رہا ہے، عجیب۔ عائشہ تم یہ لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دو، میرے لیے مسئلے بنا رہی ہو تم، مجھے باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ تم کیوں اتنی مختلف ہو، چھوڑو یہ سب کچھ یار۔ زینب تم کبھی ایک دن کسی کی مدد کر کے تو دیکھو، جو تمہیں خوشی دل کو ملے گی نا، وہ تمہیں کسی چیز کرنے میں نہیں ملے گی۔ تم ٹرائی کرو، میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں۔ اگر تمہارے دل کو سکون اور راحت نہ ملا تو تم میرا نام بدلنا۔ جو سکون ایک مجبور انسان کی مدد کرنے میں ملتی ہے، وہ دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ملتی۔ تم میری بہن اور میرا خون ہو، میں ہمیشہ اچھا چاہوں گی تمہارے لیے۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو تم، مجھے بھی مدد کرنی چاہیے سب کی، بے شک مدد کرنے میں ہی بہتری ہے اور ثواب بھی۔ چلو میں بھی آج سے تمہارے ساتھ مل کے لوگوں کی مدد کروں گی۔ ہاں تو بچوں، اس طرح زینب کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اسے پتہ چل گیا کہ اصل کامیابی صرف اپنی فکر کرنے میں نہیں، بلکہ ضرورت مند کے کام آنے میں ہے، مجبور انسان کی مدد کرنے میں ہے۔ یہی تو زندگی کا اصول ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، دنیا کے اندر اچھائی پھیلانی چاہیے۔ ایک شہر میں خوشحال مگر سادہ سا گھرانہ رہتا تھا، جس میں ساس سسر، 2 بیٹے اور وہ بیٹے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بڑی بہو کا نام عائشہ تھا، جس کے 2 بچے تھے، وہ شہر میں ملازمت کرتی تھی، اور چھوٹی بہو کا نام مریم، جو گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ گھریلو خاتون تھی اور اس کے بھی 2 بچے تھے۔
आयशा सुबह सवेरे बच्चों को स्कूल भेजती, फिर खुद दफ्तर चली जाती और शाम को थकी हारे घर आ जाती थी। उसका बहुत मन होता था कि घर भी साफ रहे और मेरे बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी जारी रहे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वो सारे काम एक साथ नहीं कर पाती थी। जबकि दूसरी तरफ जो कि मरियम थी, वो बहुत घरेलू खातून थी। हर एक चीज़ काम पे करती, घर में सबकी खिदमत करती, सास ससुर के लिए खाना पकाती, हर एक चीज़ ऐन वक्त पर करती। ये सब देखकर मोहल्ले वाले भी बातें करते। मरियम तो बेहतरीन बहू है, हर वक्त 24 घंटे घर के लिए हाजिर। बच्चों को पढ़ाती भी खुद है, बड़ों का ख्याल भी रखती है, सबकी खिदमत करती है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, बाकी में मरियम बेहतरीन बहू है। काश हमें भी ऐसी ही बहुएं मिले, हमारे तो मज़े हो जाएंगे। हाँ भाई, सकीना बीबी के तो मज़े हैं। काश हमें भी ऐसी लड़की मेरे हाथ लग जाए। मैं तो अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू ढूंढ के लाऊंगी जो हर टाइम मेरे लिए हाजिर और मैं जो भी कहूँ वो मान जाए और मुंह में जुबान भी ना रखती हो। ये बातें आयशा के दिल में चुभती, मगर वो खामोश हो जाती। वो सब्र का मुजाहरा करती थी। एक दिन सासू माँ की तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो गई। आयशा ने दफ्तर से छुट्टियाँ ली और सारी रात सास की खिदमत करती थी, दवा देती थी, खाना देती थी, सब कुछ टाइम पर देती थी और सारी रात उसके साथ बैठती थी। मरियम ने भी तमाम बच्चों का ख्याल रखा और सारे घर के काम पर निपटा दिए। सासू माँ बहुत खुश होती थी ये सब कुछ देख के कि मेरी दोनों बहूएं अपनी जगह बहुत अच्छा काम करती हैं और दोनों मेरा ख्याल भी रखती हैं। तो लिहाजा वो बहुत दिल से मुतमईन थी दोनों से। चंद ही दिनों में सासू माँ की तबीयत फिर से बहाल हो गई। वो तंदुरुस्त हो गई, उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को पास बिठाकर कहा, मैंने ये बात आज खूब समझ ली कि घर सिर्फ एक रास्ते पर नहीं चलता। कोई बाहर के काम निपटा कर घर को सहारा देता है, तो कोई घर के काम मुकम्मल करके घर को जन्नत बनाता है। दोनों काम बहुत जरूरी है। दोनों काम घर को मुकम्मल तौर पर सुकून का सहारा देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों से। ये मेरा फ़र्ज़ था अम्मी जी। आप तंदुरुस्त हो गई, यही मैं चाहती थी कि आप सेहतमंद हो जाएं। तो मैं एक सास होने के नाते ये बात बखूबी समझती हूँ कि आयशा के बच्चे नज़्म व सब्र और मेहनत सीखते हैं, जबकि मरियम के बच्चे सब्र, तहम्मुल और खिदमत का सबक सीखते हैं। दोनों बहुत ज़रूरी हैं। दोनों बीवियों के शौहर मुझसे बहुत खुश थे। आयशा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मेरे बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी करती है, पर मेरी माता का ख्याल भी रखती है। कोई बात नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। बहुत शुक्रिया, आप मुझे इतना मोटिवेट कर। दोनों बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि घर मुकाबले से नहीं, ताउन से चलता है। बहुत शुक्रिया मरियम, तुम मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती हो, उन्हें हर एक चीज़ टाइम पर देती हो, खाना, होमवर्क, सब कुछ। कोई बात नहीं, तुम मेरी बहनों की तरह हो। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, तुम भी मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती हो मेरी गैर मौजूदगी में। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इफलाकी सबक हमें इस कहानी से ये मिलता है कि हर औरत का किरदार मुख्तलिफ होता है, मगर इज्जत हर उस औरत की है जो नीयत साफ करके अपनी जिम्मेदारी निभाती है। काम करने वाली औरत भी काबिल एहतराम है और घर संभालने वाली औरत भी काबिल एहतराम है। दोनों ये मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा का जिक्र है कि गर्मियों की बात थी। एक शहर में आयशा नामी लड़की की शादी एक बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली में हुई। जिस खानदान में इसकी शादी हुई वो बहुत बड़ा था। अभी इसकी शादी को चंद ही दिन गुजरे थे। वो अक्सर सोचा करते, ऊपर वाले, मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आती है। मुझे हिम्मत और तौफीक दे कि आगे ज़िंदगी में सबको मैं खुश रख सकूं। एक रोज सुबह ए बहू रानी, ये मायके के कपड़े क्यों पहने हैं? कहा था ना वो कपड़े पहने जो ससुराल की तरफ से आए हैं। और इतना देर से क्यों जागी हो? टाइम पे जागा करो। जो आदतें माँ बाप के घर से सीख आई उसे वहीं पे छोड़ दो। माफ़ कीजिएगा अम्मी जान, मगर सर में बहुत शदीद दर्द है, जिसकी वजह से जो सामने कपड़े नजर है वही पहन लिए। आइंदा वक्त से जागूंगी। ये तो वक्त ही बताएगा बहू रानी। खैर 10 से 15 मेहमान आ रहे हैं शादी की मुबारकबाद देने के लिए, लिहाजा 20 रोटियां, कोफ्ते, चावल, पालक पनीर, साग ये सब बना लेना। दावत की इतनी बड़ी लिस्ट सुन के आयशा खामोश हो जाती है, पर परेशान हो जाती है कि ये सारा सब कुछ अकेले वो कैसे करेगी। अरे ऊपर वाले, मदद करिएगा मेरी। कैसे बनाऊंगी ये सब कुछ अकेले में? इतना थोड़ा वक्त है। चलो कोशिश करती हूँ। लिहाजा आयशा खाना बनाने में मसरूफ हो जाती है। खाना बनने के बाद तमाम मेहमान खूब पेट भर कर खाना खाकर रुखसत हो जाते हैं।
ढेरों बर्तन धोने के बाद और झाड़ू पोछा करने के बाद आयशा की सासू माँ उसके पास आती है और कहती है कि बहू रानी, कल 10 मेहमान और आएंगे तो जल्दी उठ जाना। सासू माँ, अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ आराम करना चाहती हूँ। और कल के लिए अगर आप अलीना को कह दें मेरी मदद कर ले तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ओहो, लगता है माँ बाप ने बिना कुछ सोचे समझे अपना बोझ हम पर आके फेंक दिया। सुनो बहू रानी, इस घर की औरत तुम हो, मेरी बेटी नहीं। और ये बहाने बनाना छोड़ दो। शादी एक दिन की जिम्मेदारी नहीं, सारी जिंदगी की जिम्मेदारी होती है। लिहाजा हर दिन तुम्हें एक काम करना होगा, समझी तुम? आयशा यह सुनकर बहुत परेशान हो जाती है मगर खामोश रहती है। उधर ही अलीना अपनी सहेली के साथ स्टार प्लस के ड्रामे देख रही होती है। मोबाइल, टीवी और शॉपिंग ये इसकी फेवरेट हॉबीज होती है। बाकी इसके अलावा वो किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। अरे ओ आयशा, मेरी दोस्त और मेरे लिए 2 कप चाय, विंग्स और बर्गर बना के लाना, जल्दी इसी वक्त। सुन रही हो ना? बेबी तो नहीं हो गई हो? यार अलीना, तुम्हें पता है अली ने मुझे फाइनली प्रपोज कर लिया। यस, अब से मजा आएगा, उसे मैं बहुत टफ टाइम दूंगी। यार क्या बताओ। अरे वाह, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आयशा अपने कमरे में परेशान सोच रही होती है कि ऊपर वाले मेरी मदद फरमा, इतना सारा काम, वो भी रोज रोज का, मुझे अकेली मैं कैसे करूँगी? मेरे लिए रास्ते आसान कर दे ऊपर वाले। आयशा का शौहर गुस्से में आता है और कहता है, आयशा, मैं नहीं जानता मुझे ये बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी, मगर मेरे सारे कपड़े धोकर उसी टाइम इस्त्री किया करो और जूते सारे के सारे पॉलिश करके रखा करो। मुझे माफ़ करना रज़ा, मैं हर काम टाइम पर करने की कोशिश करती हूँ, मगर इंसान हूँ, एक आध काम में देरी हो जाती है। बस आयशा, ये बहाने बनाना और छोड़ दो, ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा। मुझे ऐन वक्त पर काम चाहिए, समझी तुम? एक दिन आयशा की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो जाती है। वो बहुत बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर उसे 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट कहता है। आयशा, मैं तुम्हारी सारी दवाएं ले आया हूँ, मजीद कुछ चाहिए हो तो बता देना। नहीं रज़ा, शुक्रिया, तुम दवाएं ले आए, यही काफ़ी है। मगर मैं इन दिनों में घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए मुझे माफ़ करना। अरे मेरी बेगम, परेशान ना हो, तुम ठीक हो जाओगी तो सारे ये काम तुम्हें ही फिर से करने पड़ेंगे। इन कामों से छुट्टी नहीं है तुम्हारी। एक दिन रज़ा ऑफिस से आता है और अरीना को कहता है, अलीना, मेरे सर में शदीद दर्द है, खाना और 1 कप चाय ले आओ मेरे लिए। आज ऑफिस में बहुत थक गया हूँ मैं। अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे खाना बना लूँ और ले आऊँ? चाय मुझे नहीं बनाने आती आपकी तबीयत की। अम्मा को कहते, वो बना लेंगे। रज़ा खामोश हो जाता है और वो अपनी अम्मा के पास चला जाता है। बेटा, मुझ बुढ़ी हड्डियों में कहाँ इतना जोर कि मैं तुम्हारे लिए इस उम्र में उठूं और खाना बनाऊं। यकीन रखो तो एक आसान तरीका बताती हूँ। बाहर से ऑर्डर करा लो बेटा, आजकल तो बाहर से सब कुछ मिल जाता है। रज़ा बहुत उदास हो जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। 1 हफ्ता लगातार इनके घर में फास्ट फूड और बाहर का खाना खाया जाता है, जिसकी वजह से इन सब की तबीयत नासाज हो जाती है और पेट खराब हो जाता है। हाय, मेरा तो पेट शदीद खराब है। मेरी तो खिचड़ी बन गई है। पता नहीं इसमें इसने का ड्रामा और कितने दिन चलेगा। हाय ऊपर वाले, तू ही रहम फरमा, कुछ मदद फरमा। हाय अल्लाह, शदीद दर्द है पेट में। वहाँ रज़ा को भी मोशंस लग गए। हाय अल्लाह, मैं कैसे जाऊंगा ऑफिस इस तबीयत में? मुझे तो बात बात पे वॉशरूम जाना पड़ रहा है। कैसे करूंगा मैं ये 1-2 दिन काम? मेरी तो शदीद तबीयत खराब है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। फिर चंद ही दिनों में घर वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सासू माँ कहती है, लासा बेटे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लगता है आयशा बहू रानी पर हमने उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी डाल ली, इसलिए वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई। आइंदा के लिए हमें एहतियात करना चाहिए। तुम क्या सोचते हो इस बारे में बेटा? ठीक कहती हैं अम्मी आप, मुझे खुद इस बात का बहुत एहसास हुआ है। इस 1 हफ्ते में तो मेरी धज्जियाँ उड़ गई। आज के बाद से मैं उससे नरमी से पेश आऊँगा। आयशा मेरी जान, मुझे माफ़ करना, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इन चंद दिनों में मुझे एहसास हुआ
کہ تم ہمارے گھر کے لیے کتنی اہم ہو۔ روز باہر کا کھانا کھا کھا کر مجھے تو موشنز لگ گئے تھے۔ او رضا میری جان، تمہیں احساس ہوا، یہی بڑی بات ہے۔ عائشہ رضا کو گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے، یہ میرا گھر ہے، میں نے یہاں پر سب کو اپنا سمجھا، جتنی مجھ میں ہمت ہے میں ہمیشہ سب کی خدمت کروں گی، ایسے نہ کہیے۔ عائشہ تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں، تم واقعی میں ایک بہت اچھی خاتون ہو، میں خوش ہوں کہ مجھے تمہاری جیسی بیوی ملی۔ ہاں تو میرے پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ احساس ہی سب سے بڑی دولت ہے، اور ہمیں اپنے ہر رشتے کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے۔ رحم دلی ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔